राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि बढ़ती आबादी के अनुरूप विकास करना ही मुख्यमंत्री केसीआर का संकल्प है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में जलापूर्ति विभाग द्वारा आरंभ किए गए आउटर रिंग रोड द्वितीय चरण परियोजना की मंत्री केटीआर के साथ मिलकर सबिता इंद्रा रेड्डी ने आधारशिला रखी। इस मौके पर सबिता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि मुख्यमंत्री केसीआर ने उनसे कहा है कि यह क्षेत्र अपना है या नहीं देखे बिना सभी क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री केसीआर के निर्देश अनुसार मंत्री केटीआर हर प्रकार के कदम उठा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सांसद रंजीत रेड्डी, विधायक प्रकाश गौड़, एमएलसी महेंद्र रेड्डी, सुरभि वाणी देवी, काटेपल्ली जनार्दन रेड्डी सहित अन्य अधिकारी आदि उपस्थित थे। ఏ విధంగా అయితే డెవలప్మెంట్ అవుతా ఉందో, జనాభా ఏ విధంగా పెరుగుతూ ఉందో, జనాభాకు అనుగుణంగా డెవలప్మెంట్ చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన. దాంట్లో భాగంగా జేహెచ్ఎంసీ ఏరియాతో పాటు సరౌండింగ్లో ఉన్న రింగ్ రోడ్ లోపల ఉన్న ఏరియాతో పాటు హెచ్ఎండిఏ ఏరియాను కూడా బేస్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డైరెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నా ఎవరి నియోజకవర్గం వాళ్ళు, ఎవరి జిల్లా వాళ్ళని మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది కాబట్టి మన నియోజకవర్గము, మన ఏరియా, మన లైన్ తీసుకోవాలని కాకుండా ఓవరాల్గా 50 సంవత్సరాల వరకు మన హైదరాబాద్ సిటీలో డెవలప్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ చేపట్టాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూ ఉంటారు. గతంలో కూడా మేము చాలాసార్లు వర్క్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రాంతంలో కూడా చూస్తున్నాం. మణికొండనో లేకపోతే నార్సింగ్ లేకపోతే బండ్లగూడకు నీళ్లు తీసుకురావాలంటే జేహెచ్ఎంసీ ఏరియాకి ఎక్కడి నుండి ఎట్లా ట్యాప్ చేయాలని చూసేవాళ్ళని తప్పిస్తే కెపాసిటీ ఏ విధంగా పెంచుకోవాలి, ఎట్లా చేయాలనే ఆలోచన గతంలో ఉండేది కాదు. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దూరదృష్టికి నిదర్శనం. మన హైదరాబాద్కి సంబంధించి ఒక రిజర్వాయర్ సపరేట్గా పెట్టాలని, భవిష్యత్తులో ఎక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా హైదరాబాద్కి మాత్రం ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండేటట్టు ప్లానింగ్ చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూ ఉంటారు. ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్న మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే వారు పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్తో తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన డైరెక్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డు యొక్క ఎండి గారు దానకిషోర్ గారు, వేదిక పైన ఆసీనులైన గౌరవనీయులు మన అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీస్ ప్రతీక్ గారు, ఇంకా పేరు పేరున వేదిక పైన ఉన్న గౌరవ చైర్మన్లకి, గౌరవనీయులైన మేయర్లకి, స్థానిక కౌన్సిలర్ గారికి, అదేవిధంగా మా నార్సింగి మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు ఉన్నారు, బండ్లగూడ మేయర్ గారు ఉన్నారు, వారికి, వేదిక పైన ఉన్న అధికారులకి, వేదిక ముందున్న ఈ అల్కాపురి టౌన్షిప్ యొక్క సోదరులకి, సోదరీమణులకి, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా విచ్చేసిన కొంతమంది గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకి, అధికారులకి, ముఖ్యంగా పాత్రికేయ మిత్రులకి పేరు పేరున అందరికీ నమస్కారం, హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గౌరవనీయులు పెద్దలు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారు, వారు ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఒక మాటను చాలా స్పష్టంగా దేశ ప్రజల ముందు, రాష్ట్ర ప్రజల ముందు, అదేవిధంగా ప్రభుత్వంలో ఉన్న గౌరవ ప్రజాప్రతినిధుల ముందు వారు ఒకటి పెట్టడం జరిగింది. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి ఇంకా ఒక సంవత్సరం అయితే 75 ఏళ్ళు నిండుతాయి. కరెక్ట్గా 47లో స్వాతంత్రం వచ్చింది ఆగస్టు నాడు. మరి దాదాపు ఇంకొక ఈ ఆగస్టు వచ్చిందంటే 75 ఏళ్ళు నిండిపోతాయి. राज्य के मंत्री चामकुरा मल्लारेड्डी ने कहा कि राज्य की गरीब जनता के लिए निरंतर परिश्रम करने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री केसीआर अकेले ही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य गठित होने के पश्चात राज्य की सत्ता में टीआरएस सरकार आने के बाद अनेकों कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ किया गया है। मेडचल जिला बोडुप्पल पीरजादीगुड़ा नगर निगम परिधि में मंत्री ने कल्याण लक्ष्मी तथा शादी मुबारक योजना के चेक लाभार्थियों में वितरित किए। इस अवसर पर मल्लारेड्डी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना राज्य सभी क्षेत्रों में विकास हासिल कर रहा है। డబుల్ బెడ్రూమ్ కూడా తొందరనే ఈ వారం 10 దినాల్లో అలాట్ అయితే కూడా మిగతా 202 ఉన్నాయి, అవి కూడా అలాట్ అవుతాయి. పేద ప్రజలు ఎవరికైతుందో వాళ్ళకి తప్పకుండా అలాట్ అవుతుంది. ఎవరైతే 60 గజాలలో కట్టుకున్నారో వాళ్ళకు కూడా 3 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చే కొత్త స్కీమ్ కూడా వస్తున్నది గవర్నమెంట్ లా. ఇవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి. కాబట్టి జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్.
राष्ट्रीय बालिका दिवस के संदर्भ में राज्य की मंत्री सत्यवती राठौर ने राज्य की समस्त बालिकाओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर बालिकाओं की पढ़ाई न रुके, इसी उद्देश्य से राज्य सरकार बालिकाओं की शिक्षा को अधिक महत्व दे रही है। इसी संदर्भ में मंत्री सत्यवती राठौर ने बालिकाओं का आह्वान करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सब भागीदार होकर बालिकाओं को डिजिटल शिक्षक उपलब्ध कराकर उनकी महत्ता को उभार कर विश्व को परिचित कराने में योगदान देना चाहिए। मंत्री ने कहा कि तेलंगाना राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बालकों के समान बालिकाओं को और अधिक शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षण संस्थाओं में डिजिटल शिक्षा को अधिक महत्व दे रही है। कार्वी के प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर कार्वी संस्था ने धोखाधड़ी की है, इस बात की अधिकारियों ने जांच के दौरान पहचान की। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पार्थ सारथी पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ कर रही है। यह ऐसा हो तो कार्वी संस्था ने निवेश के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी की है। निवेशकों के नाम को अपने ही नाम बताकर कॉरपोरेट बैंकों से ऋण लेकर धोखा दिए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के अवैध क्रियाकलापों की सीसीएस पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने पहले ही इस बात की पुष्टि की है कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग संस्था ने 3,520 करोड़ रुपए गबन किए हैं। पुलिस ने यह भी पता लगा लिया है कि यह धोखाधड़ी 8 वर्षों की अवधि में की गई है। पुलिस के पास इससे संबंधित सभी पुख्ता प्रमाण उपलब्ध हैं। हैदराबाद मेट्रो विकास प्राधिकरण संस्था की परिधि में स्थित नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों के शहरी योजना विभागों में हुए अवैध क्रियाकलाप अब घोटाले एक के बाद एक बाहर आते जा रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्वावधान में चल रहे अवैध निर्माणों को ढहाने की कार्रवाइयों में घोटालों के महल हिलते ही जा रहे हैं। कई नगर पालिकाओं में बिना अनुमतियों के भवनों के निर्माण तथा ऐसे भवनों को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए कर्मचारियों का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। अनुमतियां लेकर निर्मित किए गए भवनों को शहरी योजना विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। जिन भवनों में अतिक्रमण न हो, ऐसे भवनों को निवास योग्य पत्र जारी कर रहे हैं। तभी उस भवन का टैक्स भी तय किया जाता है, यह अधिकारियों का कहना है। एचएमडीए परिधि में नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों के इससे नियमों से भिन्न कार्य होने की पुष्टि हुई है। बिना अनुमतियों के ही भवनों का निर्माण करने, उन भवनों में करों की वसूली करने में कई प्रकार की कठिनाइयां एवं दिक्कतें आ रही हैं। ताजे तौर पर मेडचल जोन में आरंभ किए भवनों को ढहाने की कार्रवाई के दौरान यह सब खामियां बाहर निकलकर आने लगी हैं। इस जोन के 4 नगर निगमों में सैकड़ों की संख्या में ऐसे ही अवैध निर्माणों का पता चला है। मेडचल तथा रंगारेड्डी जिलों में 7 नगर निगमों में तथा 22 नगर पालिकाओं की परिधियों में भारी पैमाने पर अवैध निर्माणों की गुत्थी बाहर निकल आई है। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थानीय राजस्व अधिकारी, नगर निगम पालिका तथा नगर निगमों के कर्मियों को साथ लेकर उनकी पहचान के कार्य में जुट गया है। अब तक एचएमडीए ने 600 गज से अधिक क्षेत्र वाले 200 से अधिक भवनों की पहचान की रखी है। इनमें 60 से अधिक भवनों को कर्मचारियों की गवाही में ढहा दिया गया है। नगरपालिका तथा नगर निगम G+2 भवनों के निर्माण की मंजूरी देते हैं। इससे अधिक मामलों के लिए एचएमडीए की अनुमति हेतु आवेदन करना होता है, लेकिन यहाँ G+2 की अनुमति प्राप्त मालिक भी 5 से 6 मालों के भवनों का अवैध निर्माण कर रखे हैं। इस संबंध में एचएमडीए की जांच अभी जारी है। देखना है इस घोटाले में कौन कौन से लोग बाहर आते हैं। यह सब
टाउन प्लानिंग विभाग के कर्मियों की मिलीभगत से हुआ है। इस कारण क्षेत्रीय स्तर पर कर्मियों को मेमो देने का अधिकारियों ने निर्णय कर रखा है। एक और पुलिस नगर में गांजा तस्करों पर नजर रखे हुए है, तो वहीं आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी करती जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस अवैध कारोबार में लिप्त लोगों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। नगर पुलिस ने मादापुर में आज 266 किलो गांजा तथा अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए। पुलिस ने हैदराबाद शहर में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा गांजे का परिवहन कर रहे 3 व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया गया। यह ऐसा हो तो हैदराबाद के रास्ते बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी चल रही है। दूसरी ओर हैदराबाद पुलिस ने गांजे के परिवहन पर सख्ती करते हुए उसे पूरी तरह रोकने के प्रयासों में जुटी है। मादापुर पुलिस का कहना है कि वह इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जहां के तहां गांजे की तस्करी को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, इसलिए पुलिस अपनी कमर कस चुकी है। కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారని చెప్పి కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది. రిపీట్ ఆఫెండర్స్కి లేకపోతే పీడీ యాక్ట్లో తీసుకుంటున్నాము. ఇంకా వాట్ ఎల్స్ వీళ్ళకి అదే ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుని విల్ సీ వాట్ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ. सनत नगर पुलिस थाना परिधि में एक युवक ने माता पिता के टोकने मात्र पर आत्महत्या कर ली। माता पिता का दोष यही था कि उन्होंने राहुल नामक युवक को यही कहा कि तुम बाहर क्यों घूम रहे हो, घर में रहकर अपनी पढ़ाई कर लो। यहाँ सनत नगर स्थित राधा कृष्ण नगर में रहने वाले इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे युवक राहुल को उसकी मां ने कहा कि बाहर घूमने का समय बीत जाने पर तुम क्या करोगे, इस कारण तुम बाहर जाने के बजाय घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करो। उसने अपने पुत्र से यह भी कहा कि तुम अपने बाहर घूमने की आदत बदल लो, यह ठीक नहीं है। माता पिता की मात्र इस बात से नाराज हुआ राहुल मानसिक चिंता में पड़कर यहीं पर रुके बिना सीधे आत्महत्या कर लिया। इस घटना की सूचना मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजकर मामले की जांच कर रही है। हैदराबाद महानगर निगम की बहुप्रतीक्षित MMTS द्वितीय चरण योजना को अब शीघ्र ही मुक्ति मिलने की संभावनाएं नजर आने लगी है। कई वर्षों से तेलंगाना सरकार द्वारा अपना हिस्सा जारी न करने से MMTS द्वितीय चरण कार्यों में हरकत नहीं आई। इस योजना के लिए रेलवे ने अपने हिस्से से भी अधिक रकम खर्च करने पर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। यदि द्वितीय चरण का प्रस्तावित मार्ग उपयोग में आ जाए तो मेडचल घटकेसर शमशाबाद के लिए कम दामों पर यात्री अब आवाजाही कर सकते हैं। नगर में उपनगरीय पैसेंजर रेलों की भीड़ अधिक रहने से केंद्र तथा राज्य सरकार मिलकर वर्ष 2003 में MMTS परियोजना के कार्य आरंभ किए थे। प्रथम चरण के कार्य पूर्ण हो जाने से विविध क्षेत्रों के लिए सेवाएं अब चल रही है। वित्त वर्ष 2012-13 में MMTS फेज 2 की परियोजना स्वीकृत हुई। हैदराबाद सिकंदराबाद नगर द्वय में आरंभ किए गए कार्यों को वर्ष 2019 तक पूर्ण होना चाहिए था। इस परियोजना का व्यय 816 करोड़ रुपयों का अनुमान लगाया गया। इसमें तेलंगाना राज्य सरकार का हिस्सेदारी 543 करोड़ हो तो इसे 273 करोड़ रुपयों पर निश्चित किया गया। यह ऐसा हो तो रेलवे ने अपने हिस्से की राशि को 4 वर्ष पूर्व ही भुगतान कर दिया है, लेकिन
तेलंगाना सरकार द्वारा अपने हिस्से की रकम आज तक भी जारी न करने से यह सभी काम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। वहीं दूसरी ओर मेडचल तक की दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों को आरटीसी बसों पर ही निर्भर होकर यात्रा करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर आज भूमि का स्वर्ग सा लग रहा है। बर्फ की चादर ओढ़े पर्वत आकाश के समान दिखाई देते हुए आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हरे भरे रंगीनता से भरे वृक्षों का सौंदर्य कश्मीर को सप्तवर्णीय सुंदरता प्रदान कर रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी से जम्मू कश्मीर में स्थित पर्वत श्रृंखला वृक्ष आदि श्वेत वर्ण के साथ चमक उठे हैं। यहाँ मानो चंदी ही चांदी बिछाई गई हो। यहाँ का तापमान -, डिग्री में दर्ज हो रहा है, जिस कारण कश्मीर की पर्वत श्रृंखलाएं देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसे देखने आए पर्यटक आज मंत्रमुग्ध होकर निहारते जा रहे हैं। राज्य विधानसभा के उपसभापति टी पद्माराव ने तारनाका डिवीजन क्षेत्र का आज विस्तृत दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान पद्माराव ने शांति नगर में 28 लाख रुपयों की लागत से स्थापित स्ट्रोम वाटर बॉक्स ड्रेन का शुभारंभ किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात उपसभापति ने स्थानीय जनता से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस अवसर पर पद्माराव ने कहा कि नगर के चौमुखी विकास हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में हैदराबाद शहर और भी सुंदर एवं आकर्षक शहर में परिवर्तित हो जाएगा। इस अवसर पर तेलंगाना ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राज्य शाखा अध्यक्ष मोते शोभन रेड्डी, टीआरएस के कई नेता एवं सरकारी अधिकारी आदि भारी संख्या में उपस्थित थे। यादाद्री भुवनगिरी जिले के चौटुप्पल मंडल केंद्र में स्थित अंजिरेड्डी सिनेमा थिएटर परिसर में एक आग दुर्घटना घटी। आज प्रातः थिएटर में बंगारू राजू फिल्म शो के चलते समय अचानक आग की लपेटें निकलनी आरंभ हुई। इस समय फिल्म देख रहे दर्शक आग की लपेटों को देख भय के मारे बाहर दौड़ पड़े। थिएटर के कर्मियों ने उसी समय आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी, जिससे थिएटर प्रबंधन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दमकल वाहनों की मदद से आग को पूरी तरह से बुझाकर उसे काबू में कर लिया। थिएटर प्रबंधन ने बताया कि आग की लपेटों को पहले ही पता चल जाने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। चौटुप्पल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। कारवान विधानसभा क्षेत्र में मजलिस पार्टी के स्थानीय विधायक कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकोंडा मंडल में 256 लाभार्थियों में शादी मुबारक योजना के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर विधायक कौसर मोहिउद्दीन ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना की टीआरएस सरकार राज्य की गरीब जनता के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं ले आई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में महिलाओं के लिए केसीआर सरकार अनेकों नए नए अवसरों का सृजन कर रही है। इस अवसर पर कारवान क्षेत्र के विधायक सहित गोलकोंडा डिवीजन के पार्षद खादर, लंगर हाउस क्षेत्र के पार्षद वज्जी उज जमा सहित कई स्थानीय नेता कार्यकर्ता आदि भारी संख्या में उपस्थित थे। कारवान के गोलकोंडा मंडल के शादी मुबारक के 255 शादी मुबारक के चेक को दिया गया और इस प्रोग्राम के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदार और जीएचएमसी के मजलिस के तमाम काउंसलर्स, लंगर हाउस नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब अजय सिद्दीकी साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब बदर साहब और दीगर जमाती रुखा इस प्रोग्राम में शामिल थे। मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम हल्के कारवान के तमाम से अपील करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर शेखपेट मंडल,
और आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी के अनखरी में दिए जाएंगे। फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि जो भी मकानात के पास जो भी पिछले 2 महीने 3 महीने पहले जो शादियाँ में थे उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके करीबी मीत सेवा पर जाकर ऑनलाइन कराएं। 2 से 2.5 महीने के अंदर हम पूरी नुमाइंदगी कर आपको तमाम को शादी मुबारक किया हो या कल्याण लक्ष्मी के चक्कों को दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज उसी की घड़ी थी जो 255 चक्कों को दिया गया दारुसलाम के अंदर। मैं फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ आपके करीबी मीत सेवा पर जाकर ऑनलाइन कर रही है। शुक्रिया।